Good morning, students. Myself Desh Sharma, your English teacher. And today in this video we are going to start our next lesson from our book Snapshots. The name of your chapter is Birth. So let's start our chapter. As you know, guys, the name of our chapter is Birth and the name of the writer is A.J. Cronin. And this chapter is an excerpt from the Citadel. Andrew Manson, newly out of medical school, had just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Pace in the small Welsh mining town of Blanley. So this lesson is an excerpt from the book, from the novel Citadel, and in this chapter Andrew is the main hero of the chapter, and he had just finished his medical practice and now he is working as an assistant to Dr. Edward Pace in the small Welsh mining town of Blanley. Blanley is the name of the place where Andrew is living. और वो जो टाउन है वो माइनिंग टाउन है, यानी कि वहाँ पे खोदने वगैरह का काम ज़्यादा होता है. As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he is met by Joe Morgan. Our hero Andrew is very disappointed because his meeting with his girlfriend Christine was not pleasant, and he is met by Joe Morgan. तो जो हीरो है एंड्रू वो किससे मिलते हैं? जो मॉर्गन से. Joy and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child. In the starting of the chapter, we come to know that Joy and his wife are expecting their first child after 20 years of their marriage. So this was our introduction about the chapter. Now let us start our reading. Though it was nearly midnight when Andrew reached Brangrover, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the clothes surgery and the entrance to the house. At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. Burly hair is healthy. When Andrew came to his house, he found that Joy Morgan was waiting for him because his wife was expecting her first child, and he had come there to take Andrew to his home. At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. तो जैसे ही जो जॉय मॉर्गन है वो एंड्रू को देखता है तो काफ़ी रिलैक्स्ड होता है, क्योंकि वो उसी को वहाँ पे लेने के लिए आया था. Doctor, I'm glad to see you. I've been back and forward here this last hour. The Mrs. wants ye before time too. तो यहाँ पे जो जॉय मॉर्गन होता था कि मेरी जो वाइफ है वो तुम्हें देखना चाहती है क्योंकि वो उसके अभी बेबी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. Andrew abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. अब एंड्रू हमें पता है कि काफ़ी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि जो उसकी मीटिंग थी क्रिस्टिन के साथ वो प्लेजेंट नहीं थी, वो काफ़ी दुखी था. तो वो अपने ही कंटेम्पलेशन से बाहर आता है, मीन्स आइडियाज़, वो अपने ही विचारों में लॉस्ट था, वहाँ से बाहर आता है और वो मॉर्गन को कहता है कि तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी जस्ट आता हूँ. He went into the house for his bag, then together they set out for number 12 Ballina Terrace. This is the address of Joy Morgan. The night air was cool and deep with quiet mystery, usually so perceptive. Andrew now felt dull and listless. And he is dull and listless. Why? Because his meeting with Christine was not successful. He was very disappointed. He had no premonition that this night call would prove
unusual. Premonition means guess before time, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्वाभास. He had no idea, he had no imagination, कि वो उसके पता भी नहीं था कि आज की जो रात है वो कितनी unusual होने वाली है. Still as that it would influence his whole future inblindly. और वो इस बात से भी अवेयर नहीं था कि आज की रात उसके फ्यूचर पे कैसे इफेक्ट डालेगी. उसका फ्यूचर जो एज ए डॉक्टर वहाँ पे होने वाला था कैसे इससे इफेक्ट हो जाएगा. The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joel drew up short. जो दोनों persons थे, they were not talking to each other. I will not come in, he said. And here he is Joy, he said, I will not come in. His voice showed signs of strain. But man, I know you will do well for us. Here Joy is very optimistic. He is saying that he know that Dr. Andrew will do well for him. क्योंकि वो उसके लिए सब कुछ ठीक कर देंगे. Inside a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp. जो रूम था बहुत स्मॉल था, क्लीन था अच्छे से, उसमें फर्नीचर वगैरह नहीं था. मीन्स जो नॉर्मल फर्नीचर होता है, चेयर, बेड, सिर्फ वो वही चीज़ें थी वहाँ पे. और वहाँ पे केवल एक ऑयल लैम्प था. हेयर मिसिस मॉर्गन्स मदर, ए टॉल ग्रे हेड वुमन ऑफ नियरली 70, and the stout elderly midwife waited beside the patient. Stout means healthy होता है. तो वहाँ रूम में जॉय मॉर्गन की मदर है, एक मिडवाइफ है. मिडवाइफ ए लेडी who helped in the delivery of a child. Watching Andrew's expression as he moved about the room. तो वो उन सबके एक्सप्रेशन देखते हैं, एंड्रू उनके एक्सप्रेशन देखते हैं, और वो जो लेडीज़ वहाँ पे वो एंड्रू के एक्सप्रेशन देखते हैं. लेट मी मेक यू ए कप ऑफ टी. और जैसे ही एंड्रू वहाँ जाके देखते तो उन्हें रियलाइज होता है कि इट विल टेक सम टाइम. देन द लेडी सेड टू हिम, लेट मी मेक यू ए कप ऑफ टी डॉक्टर, सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स. तो लेडी ने सोचा कि डॉक्टर अभी आए, कह रहे कि कुछ टाइम लगेगा, तो तब तक चले ना जाएं, इसलिए वो कहती है कि मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ. एंड्रू स्माइल्ड फेंटली. फेंटली मीन्स वीकली. He saw that the old woman, wise in experience, realized there must be a period of waiting, that he was afraid he would leave the case, saying he would return later. In these lines, we come to know the mentality of the old lady, the mentality of the Joy Morgan's mother. Don't fret, mother, I will not run away. But Dr. Andrew says to him, mother, don't fret, don't worry, I will not run away. Down in the kitchen, he drank the tea which she gave him. Overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. तो डॉक्टर एंड्रू को ये पता था कि बेबी होगा, थोड़ी देर में होगा. उसने क्या, अगर वो वापस भी जाके रेस्ट करने की सोचेंगे तो वो 1 घंटे की भी स्लीप नहीं ले पाएंगे. He knew too that the case here would demand all his attention. A queer lethargy or speed came upon him. उसे पता था कि कुछ टाइम उन्हें वहाँ पे लगने वाला है. He decided to remain until everything was over. तो उन्होंने सोचा कि वो वहीं पे वेट करेंगे जब तक सब कुछ ओवर नहीं हो जाता. An hour later, he went upstairs again, noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire. तो एंड्रू है वो किचन फायर के पास बैठ जाते हैं. It was still except for the rustle of a cinder in the grate and the slow tick-tock of the wall clock. तो बता रहे कि वहाँ पे किस चीज़ की साउंड आ रही है. तो किसकी आ रही है? रस्टल क्या होता है? साउंड, एक तरह की साउंड होती है. और फिर सिंडर, सिंडर मीन्स बर्निंग स्टिक.
किचन फायर के पास बैठे हैं वहाँ पे जो स्टिक फायर में एंगेज की हुई है उसकी आवाज़ आ रही है और घड़ी की आवाज़ आ रही है. नो देयर वाज अनदर साउंड, द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप्स एज ही पेस्ड अप इन द स्ट्रीट आउटसाइड. देयर इज अनदर साउंड. और वो साउंड किसकी है? बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप. मॉर्गन है जो काफ़ी टेंस्ड है क्योंकि उनका फर्स्ट बेबी होने वाला है, तो काफ़ी टेंशन में और वो बार बार गली में घूम रहे हैं. द ओल्ड वुमन अपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस क्वाइट मोशनलेस, हर आईज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज प्रोबिंग नेवर लीविंग हिज फेस. और जो लेडी वहाँ पे है, ओल्ड वुमन है, जो मॉर्गन की मदर है, वो लगातार डॉक्टर को देख रही हैं. हिज थॉट्स वर हैवी. डॉक्टर को भी देख रही हैं और जॉय मॉर्गन को भी देख रही हैं वो. हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ड. मडल्ड मीन्स बजल्ड, यानी कि टेंगल्ड, उलझी हुई. उनकी जो थॉट्स थी वो काफ़ी मडल्ड हैं. द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट Cardiff station still obsessed him morbidly. Morbidly means a wrong way. I have told you in the introduction of the chapter that Andrew is very tensed because his meeting was not pleasant with his girlfriend Christine, and it all happened at the Cardiff station. तो वो कार्डिफ स्टेशन पे जो इंसिडेंट हुआ था उसको अभी भी भूल नहीं पाया था. He thought of Bramwell foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly, of Edward Page bound to be serious burden of Danny living unhappily apart from his wife. तो वो किसके बारे में सोच रहा है? ब्रैमवेल के बारे में, जो ऐसी वुमेन के साथ थे जो डिसीव कर रही थी किसको? श्रीविस बोर्डन से जो पर्सन बिलोंग करता है, डैनी को वो डिसीव कर रही हैं और वो अपनी वाइफ के साथ खुश होके नहीं रह रहा है. इट वॉज ए कंक्लूजन. सॉरी, वन लाइन लेफ्ट. हिज रीजन टोल्ड that all these marriages were dismal failures. कि यहाँ पे जो हस्बैंड और वाइफ हैं उनके बीच में बन नहीं रही है. डैनी इज द पर्सन एंड द वुमेन्स नेम इज नॉट गिवन. तो दीज आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड दे आर नॉट लिविंग हैप्पीली. तो उनका रीज़न यही बताया गया कि जो मैरिजेज होती हैं वो क्या होती है? एक तरह से फेल्योर होती हैं. इट वॉज ए कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस. और यही सारी चीज़ें हैं जो उसको इतना परेशान किए हुए हैं. ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडलिक स्टेट. तो एंड्रयू की क्या थिंकिंग है मैरिज के बारे में? वो मैरिज को कैसे मानते हैं? आइडलिक स्टेट मानते हैं. यस, ही कुड नो अदरवाइज कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम. और उसके सामने क्रिस्टीन का चेहरा आता है. हर आइज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम. Admitted no other conclusion. It was the conflict between his level, doubting mind and his overflowing heart which left him resentful and confused. क्योंकि क्रिस्टीन का चेहरा उसके माइंड में आ रहा है, उससे वो फिर और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है. He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire. Broodingly means thinkingly. Into the fire. और वो आग के अंदर देखते देखते सोच रहा है कि वो सारा इंसिडेंट कैसे हुआ. उसके माइंड में अभी भी सारी वही थॉट्स चल रही हैं. He remained like this so long and his thoughts were so filled with Christine that he started when the old woman opposite suddenly addressed him. Her meditation had pursued a different course. और जो लेडी थी उसकी मेडिटेशन कुछ अलग ही थी, वो कुछ अलग ही सोच रही थी. अब वो लेडी कौन है? द लेडी इज द मदर ऑफ जॉय मॉर्गन. तो जॉय मॉर्गन है वो अपने ही विचारों में है, अपने ही थॉट्स में वो
खोया हुआ है, उसका किसी का और ध्यान ही नहीं है। तो वहाँ पे जॉय मॉर्गन की मदर आती हैं और फिर वो उसे बोलती हैं। सुजैन said not to give her the chloroform if it would harm the baby। कहते कि सुजैन ने कहा कि उसे क्लोरोफॉर्म ना दें, नहीं तो बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है ये। She is awful set upon his child, doctor। Her old eyes warmed at a sudden thought। She added in a low tone, we all are, I fancy, कि हम सारे इस चीज़ को अच्छे से हैंडल करेंगे। He collected himself with an effort, यानी कि थोड़ा कोशिश करके फिर से खड़ा होते हैं। It won't do any harm, the anesthetic। ये जो क्लोरोफॉर्म है ये कुछ हार्म नहीं करेगा। He said kindly, they will be all right। Here the nurse's voice was heard calling upon the top landing। तो यहाँ पे जो नर्स है, जो मिडवाइफ वहाँ पे है, वो कॉल कर रही है। Andrew glanced at the clock, which now showed 3:30। तो टाइम कितना है हमारा? 3:30, 3:30। He rose and went up to the bedroom। He perceived that he might now begin his work। कि अब जो बेबी की डिलीवरी का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। An hour elapsed, 1 hour has passed। It was a long, hard struggle। Then as the first tricks of dance strayed past the broken edges of the blind, the child was born lifeless। तो 3:30 पे उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। 1 घंटे तक वो स्ट्रगल करते रहे और जैसे ही जान की, यानी कि जो अर्ली मॉर्निंग होती है वो, जैसे ही अर्ली मॉर्निंग की पहली रे थी वो आती है, तो उस टाइम पे बेबी पैदा होता है। और लेकिन बेबी कैसा था? लाइफलेस, बेजान। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फ्रॉम, ए शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रू। और जैसे ही वो बेबी को देखते हैं तो शिवर ऑफ हॉरर होता है, वो डर से बिल्कुल कांप जाते हैं। After all that he had promised, his face heated with his own exertions chilled suddenly। कि उसने तो प्रॉमिस किया था जॉय को कि वो सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? बेबी कैसा है? लाइफलेस। तो बिल्कुल वो, उसका फेस हीट हो गया, बिल्कुल गर्म हो चुका है, खुद की उसकी इतनी ज़्यादा थकान हो चुकी है, पसीना आया हुआ है, लेकिन फिर भी चिल्ड सडनली, वो एकदम से बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child। अब वो चाइल्ड को क्या करना चाहता है? फिर से रिवाइव करना चाहता है। And his obligation towards the mother was herself in a desperate state। और उस टाइम उनकी यही ड्यूटी थी, उन्होंने मदर से यही प्रॉमिस किया था। और मदर खुद कैसी हैं? बहुत सैड है, because she had seen that the baby is lifeless। The dilemma was so urgent, he did not solve it consciously। dilemma में था, वो दुविधा में था। He was in doubt। Blindly, instinctively, he gave the child to the nurse and turned his attention to Suzanne Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless and not yet out of the ether upon her side। तो सुजैन मॉर्गन है वो अभी भी अनकॉन्शियस है, क्योंकि उनको जो क्लोरोफॉर्म, जो एनेस्थेटिक वगैरह दिया गया था, उसके कारण वो अनकॉन्शियस है। His haste was desperate, a frantic race against her ebbing strength। ebbing means reducing। तो जो उसकी स्ट्रेंथ थी अब वो कम होती जा रही थी, वीक होती जा रही थी। It took him only an instant to smash a glass ampoule and worked unsparingly to restore the flaccid woman। After a few minutes of feverish effort, her heart strengthened। He saw that he might safely leave her। He swung round in his shirt sleeves, his hair sticking to his damp brow। तो यहाँ पे जो एंड्रू है उसकी सिचुएशन बताई गई कि कैसे वो बिल्कुल घबरा गया था, कैसे वो बिल्कुल
पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। और जो वुमेन थी, जो वीक वुमेन है, वो जो सुजैन मॉर्गन है, वो उसको भी ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारे एफर्ट्स के बाद वो बहुत जल्दी जल्दी एफर्ट्स कर रहे हैं। उसका जो हार्ट है वो और ज़्यादा मजबूत हो रहा था लेडी का। ही सा दैट ही माइट सेफली लीव हर, जैसे क्या वो उसको आराम से छोड़ सकता है। तो उसने लेडी के ऊपर अपने एफर्ट्स किए कि जो लेडी है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो, सुजैन मॉर्गन की तबीयत ख़राब ना हो, इसके लिए वो एफर्ट्स करते हैं। और जब उन्हें ये बात पता चल जाती है कि लेडी इज आउट ऑफ डेंजर, तब वो ध्यान देते हैं कि अब बेबी कहाँ है, फिर बेबी की साइड ध्यान देते हैं। वेयर इज द चाइल्ड, द मिडवाइफ मेड ए फ्राइटेंड गेस्चर। तो जो लेडी है वो फ्राइटेंड है, अफ्रेड है, और वो पॉइंट करती हैं। शी हैड प्लेस्ड इट बेनेथ द बेड, और उसने फिर उसको कहाँ रख दिया था, बेबी को अंडर द बेड। इन ए फ्लैश एंड्रू knelt down, fishing amongst the sodden newspaper below the bed, he pulled out the child. तो जो मिडवाइफ है उसने बेबी को नीचे जो न्यूज़पेपर्स वगैरह रखे हुए थे, जो फिल्थी थे, गंदे थे, उनके बीच में उसे रख दिया था। ए बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, तो डॉक्टर एंड्रू देखते कि वो एक बॉय है, अच्छे से उसकी बॉडी है वो फॉर्म हुई है। द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट, उसकी जो वार्म बॉडी वार्म है लेकिन वाइट है। सॉफ्ट एज टेलो, टेलो मीन्स द हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स मेल्टेड एंड यूज्ड टू मेक सोप एंड कैंडल्स। तो जो एनिमल्स की फैट होती है, चर्बी होती है, जिसको सोप और कैंडल्स में यूज किया जाता है, उसकी तरह वो उसको सॉफ्ट लग रहा है। द कोड हैस्टिली स्लैश्ड ले लाइक ए ब्रोकन स्टेम, द स्किन वॉज ऑफ लवली टेक्सचर। अब जो बेबी है, जो बॉय है, वो लग रहा है कि जैसे वो टूटा हुआ स्टेम हो, कोई जैसे पेड़ के किसी हिस्से को तोड़ के रख दिया गया हो। और जो उसकी जो स्किन है, उसका टेक्सचर है वो लवली है, स्मूथ है, टेंडर है। टेंडर मीन्स सॉफ्ट। द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक, और उसका जो सिर है उसकी पतली सी गर्दन से लटका हुआ है। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और उसकी जो हाथ पैर हैं वो कैसे लग रहे हैं, बोनलेस लग रहे हैं, जैसे कि उनमें कोई हड्डी ही ना हो। स्टिल नीलिंग, अभी भी झुका हुआ है, घुटनों के बल है वो। एंड्रू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद ए हैगर्ड फ्राउन, और हैगर्ड मीन्स टायर्ड। एंड्रू बच्चे की साइड देख रहे हो, काफी टायर्ड हैं। द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग, बच्चा जो वाइट दिखाई दे रहा है उसका सिर्फ एक ही मतलब था, एस्फिक्सिया, पैलिडा एंड हिज माइंड unnaturally tense, raced back to a case he once had been in the Samaritan to the treatment that had been used. Instantly he was on his feet, और फिर वो फटाफट से खड़ा होता है। उसे इंसिडेंट याद आता है कि उसकी जो सिचुएशन है वो किससे मैच हो रही है, एस्फिक्सिया में जो सिचुएशन होती है वो। और वो क्या होता है, सफोकेशन और अनकॉन्शियस कंडीशन, कि बच्चा जो होता है उसका दम घुट जाता है, उसे सांस नहीं आता, वो बेहोश हो जाता है। क्यों होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, कि जब ब्लड में एक्सेस हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, उस टाइम पे ये सिचुएशन होती है। अकम्पनीड बाय पेलनेस ऑफ द स्किन, स्किन पीली पड़ जाती है, वीक हो जाती है, एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, तो जो बॉडी है वो काफ़ी वीक हो जाती है। तो डॉक्टर को यही लगा कि एस्फिक्सिया का केस है, बच्चे को अच्छे से सांस नहीं आ पा रहा है। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, सडनली डॉक्टर एंड्रू said that get me hot and cold water. He threw out to the nurse and basins too, quick कि फटाफट लेके आओ। But doctor she faltered her eyes on the pallid body of the child. अब लेडी क्या सोच रही है कि जो डॉक्टर है वो यूजलेस ही इतने सारे एफर्ट्स करेंगे। Quick, he shouted, snatching a blanket, he laid the child upon it. फिर वो ब्लैंकेट को स्नैच करते हैं और बच्चे को उसके ऊपर लिटाते हैं। एंड बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन,
वो स्पेशल मेथड अब स्टार्ट करते हैं कि बच्चे को एक बार गर्म पानी के अंदर करते हैं और एक बार ठंडे पानी के अंदर करते हैं। 15 minutes passed. Sweat was now running into the Andrews as पसीना बिल्कुल उनके पूरी बॉडी पे आ चुका था। ब्लाइंडिंग ही आंखों के ऊपर से पसीने की बूंदें टपक रही थी जो उसे ब्लाइंड कर रही थी, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। One of his sleeves hung down, जो उनकी बाजू थी एक ऊपर थी एक नीचे थी, वो भी टपक रही थी। Breath came pantingly, वो हाँफ रहे थे, but no breath came from the lax body of the child. कि बॉडी जो बेबी की थी उसमें कोई ब्रेथ नहीं थी। A desperate sense of defeat pressed on him, a raging hopelessness. He felt the midwife watching him in stark concentration while they pressed back against the wall where she had all the time remained. Here the situation of midwife is described. She is standing against the wall and she is watching the doctor. Her hand pressed to her throat, उसने अपने गले को पकड़ा हुआ है। Uttering no sound, कोई आवाज़ नहीं निकाल रही है वो। Her eyes burning upon him was the old woman, और जो old woman है वो भी उन्हें देख रही है। He remembered her longing for a grandchild. जो लेडी है वो किसकी उम्मीद लगा के बैठी थी? ग्रैंड चाइल्ड की, अपने पोते की। As great as he had been, her daughter's longing for this child, all dashed away now, futile, beyond remedy. अब जो लेडी है उसकी क्या फीलिंग्स है? वो सब कुछ फिटाइल समझ रही है, इन वेन समझ रही है, बेकार का समझ रही है, और उसे पता था कि इसकी कोई भी रेमेडी नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती है। The floor was now a draggled mess. जो फ्लोर है वो भी बिल्कुल गंदा हो चुका है। Stumbling over a shopping towel, Andrew almost dropped the child. और फिर वो बेबी को एक टावल के अंदर लपेटते हैं और एंड्रू से लगभग वो बेबी गिरने ही वाला था। Which was now wet and slippery in his hands, क्योंकि जैसे वो बार बार पानी के अंदर डुबो रहे तो बिल्कुल वो स्लिपरी हो गया है, हाथों से फिसल रहा है। Like a strange white fish. For mercy's sake, डॉक्टर, भगवान की खातिर डॉक्टर, whimpered the midwife, it is stillborn. Whimpered means low voice. तो midwife वो low voice में बोलती है कि it is stillborn, ये जो बेबी है ये मरा हुआ ही पैदा हुआ है। Andrew did not heed her. Heed means pay attention. Beaten, despairing, having labored in vain for half an hour. एंड्रयू जो हाफ एन आवर से वर्क कर रहे थे, he still persisted in one last effort, rubbing the child with a rough towel. और अब वो एक टावल के साथ, तौलिए के साथ बच्चे की बॉडी को रब करते हैं, उसकी चेस्ट को अपने हाथों से दबाते हैं, छोड़ते हैं। Trying to get breath into the limp body, और वो उस बच्चे की जो बॉडी है, लाइफलेस बॉडी के अंदर वो ब्रेथ लाने की पूरी कोशिश करते हैं। And then, as by a miracle, the pygmy chest with his hands enclosed, और जैसे कि कोई चमत्कार हो गया हो। Pygmy means very small, tiny. With his hands enclosed, gave a short convulsive have another, और जो छोटी सी उस बच्चे की चेस्ट है उसमें थोड़ी सी सांस आती है। Have means सांस लेना। एंड अनदर, फिर एक और सांस आती है। एंड्रू टर्न गिडी, जो एंड्रू थे वो बिल्कुल उनको चक्कर आने को हो जाता है। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बेनेथ हिज फिंगर आफ्टर ऑल दैट अनअवेलिंग स्ट्राइविंग, की जो उनके हाथों में इतने टाइम से बेबी की बॉडी थी, अब उसके अंदर स्प्रिंग हो रही थी, कुछ हलचल हो रही थी। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स फेवरसली, उन्होंने जो अपने एफर्ट्स थे वो बेबी की बॉडी को टॉवल के साथ रब कर रहे थे, उसको और ज़्यादा उन्होंने स्पीडली करना स्टार्ट कर दिया। चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, अब बच्चे ने गैस्प करना स्टार्ट कर दिया, हाँफना स्टार्ट कर दिया। डीपर एंड ए बबल ऑफ मक्कास केम फ्रॉम वन टाइनी नॉस्ट्रिल, और बच्चे की जो नाक थी उसमें छोटा सा, जिसको हम क्लोट सा कहते हैं, कफ का जैसे क्लोट होता है वैसे ही वो बाहर आया। मक्कस हेयर कफ।
ए जॉयफुल इरिडेसेंट बबल, और फिर थोड़ा सा बुलबुला आता है बच्चे की नाक में। द लेंस वर नो लॉन्गर बोनलेस, और जो बच्चे की बॉडी पहले हाथ पैर सब कुछ बोनलेस दिख रहा था वो बोनलेस नहीं था। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, और जो उसका हेड था बिल्कुल लटका हुआ नहीं था। द ब्लैंच्ड स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, ब्लैंच्ड मीन्स वाइट। अब जो बच्चे की वाइट स्किन थी वो पिंक होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन था वो स्टार्ट हो चुका था। देन एक्सिक्यूटली केम द चाइल्ड्स क्राई, और फिर बच्चे ने रोना स्टार्ट कर दिया। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सोब्ड हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली मीन्स मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश होकर, थोड़ा घबराई हुई, थोड़ा हैरान हुई। वो कहती है कि डियर फादर इन हेवन, इट इज़ कम अलाइव, कि भगवान ने सब कुछ ठीक किया है, ये अब जिंदा हो गया है। एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड, ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड अबाउट हिम, द रूम ले इन ए शडरिंग लिटर। शडरिंग मीन्स शिवरिंग, एंड लिटर मीन्स रबिश, क्योंकि जो रूम था उसमें सारी जगह पे रबिश हो चुकी थी। कहीं पे न्यूज़पेपर थे, कहीं पे पानी था, कहीं पे टॉवल था, कहीं पे ब्लैंकेट था, है ना। द हाइपोडर्मिक सिरिंज impaled by its point in the linoleum, the ever knocked over the kettle on its side in a puddle of water. Upon the huddled bed, the mother still dreamed her way quietly through the anesthetic. The old woman still stood against the wall. जो ओल्ड लेडी वो अभी भी दीवार के पास है। सुजैन है वो बिस्तर पे है, अभी भी वो अनकॉन्शियस है। कहीं पे सिरिंज पड़ी हुई है, कहीं पे कैटल रखी है। बट हैंड्स वर टुगेदर, जो लेडी है उसने दोनों हाथ को जोड़ रखा है। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, शी वॉज प्रेइंग। Mechanically, Andrew wrung out his sleeve, pulled on his jacket. तो एंड्रू अब अपनी स्लीव वगैरह को ठीक करते हैं, जैकेट पहनते हैं। I will fetch my bag later, nurse, कि मैं बैग को बाद में ले लूँगा। He went downstairs through the kitchen into the scullery. तो वहाँ से फिर वो स्कलरी में जाते हैं। A room for washing dishes and for similar work, जहाँ पे बर्तन वगैरह धोने का काम होता है। His lips were dry. At the scullery, he took a long drink of water. वो काफी सारा पानी पीता है। Outside, he found Joy standing on the pavement with a tense, expectant face. अब जो जॉय है वो बिल्कुल फेस पे एक्सपेक्टेशन लाके और काफी टेंस भी है, और वो डॉक्टर की साइड देख रहा है। Then Andrew said, both all right. It was quite light, nearly 5 o'clock. A few miners were already in the streets. तो कुछ वहाँ पे खनिक थे जो खोदने वगैरह का काम करते हैं, वो स्ट्रीट्स में जा रहे थे वहाँ से। The first of the night shift moving out as Andrew walked with them, spent and slow, his footfalls echoing with the others under the morning sky. तो जैसे और माइनर्स वहाँ से जा रहे हैं, वो भी वहाँ से दोनों जाते हैं। और जाते जाते एंड्रू फिर क्या सोचता है? He kept thinking blindly, oblivious to all other works he had done in blindly. I have done something. Oh, this was the feeling in Andrew's mind. He thought that he have done something. He have done something real at last. कि अब कुछ उसने real work किया है। He was very happy because he had done a great work. He had given life to a stillborn baby, like a rebirth. So he was very happy. So students, this was our chapter. We have completed our chapter, and if you have regarding this chapter, then you can ask me. Okay, thank you students.